Hi everyone, a very heartfelt welcome to my channel. So today's topic is why is this person is constantly in your mind. So without any delay, let me shuffle the cards first. Why is this person constantly in your mind? Give me some cards. Queen of Pentacles. Okay. I think they also notice you. They're also noticing you. Ten of Pentacles. I think you are having conversation sometimes with that person as well. I think you guys are kind of student or doing some project together under some supervisor, and through this you know each other. Eight of Cups. All right, let me keep them aside, and I am looking for one more card. Nine of Swords. All right, so let me first read this, and then if needed we'll shuffle even more cards. All right, I think you guys are having active communication with each other, and one of you is still hiding their feelings और देख के भी अनदेखा हो रहे हैं. One of you is maybe changing their places or going somewhere else, for which you are scared, you are fear of losing them, and that's why maybe they are constantly in your mind. Let me tell you, I think you guys are working somewhere together. You guys get to meet each other every day for some work related concerns, and I think one of you have a much more responsibility, like your home responsibility or personal responsibility. Maybe you have, or one of you have a kid, or they have their old parents to look after, and that's why they're kind of a busy person, busy in the sense that they have a lot of personal things going on, and maybe that's why they are a little bit hesitant about expressing their feelings. I think that person also sees what you feel for them, or maybe that person also feels the same about you. They I think they likes you already, but things aren't the same for both of you in the same पेज. आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी गैप है, काफ़ी चेंज है. उन आपकी लाइफ हो सकता है काफ़ी नॉर्मल हो, इजी गोइंग हो, आपके पास वक्त रहता है, आप एक खुशहाल privileged ज़िंदगी जी रहे हो, but the other person isn't having such a privileged life. They are having responsibilities, they need to fulfill some work. उन लोगों को कुछ काम करने को दिया गया है, उन लोगों को कुछ निभाना है, उन लोगों को काफ़ी सारे पर्सनल रिलेशंस निभाने हैं, उनको लेके उनको काफ़ी काम करने हैं. मे बी दैट्स वाई दे समटाइम्स चीज़ों को अनदेखा करके रखे हैं, कि उनको पता होते हुए भी दे आर नॉट फुल्ली इंडल्जिंग इन द कम्युनिकेशन ऑफ अबाउट योर कनेक्शन. और मे बी वाइस वर्सा, शायद उनका लाइफ काफ़ी प्रिविलेज्ड हो, बट नॉट योर लाइफ सो मच प्रिविलेज्ड. तो आप दोनों की लाइफ काफ़ी अलग नज़र आ रहा है मुझे. एंड फॉर दिस डिफ़िकल्टीज दैट पर्सन इज़ रिमेनिंग साइलेंट. उनको साइलेंट ही रहना अभी के लिए एक सोल्यूशन है, बिकॉज अदर देन दैट दैट पर्सन डजंट हैव एनी अदर solution to about this connection, or what to do with this connection, what to do with you. And somewhere you have this a fear of losing this person. हो सकता है वो अपने कुछ काम के रिलेटेड शहर छोड़ के जा रहे हो, या तो फिर यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वो उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, और यू ऑलरेडी नो कि आप दोनों के बीच का जो गैप है वो शायद कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या तो फिर बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के लाइफ में. सो यू आर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर कि
अभी जो हर दिन मिलना जुलना हो रहा है वो धीरे से कम होने वाला है. एंड मे बी यू fear, you are scared of losing this person. कुछ क्रिटिकल कंडीशंस मुझे फील हो रही है कि काफ़ी बातें थे जो अनकहीं रह रही है. आप लोग बहुत बातें करते हो, दिन भर मिलते हो, काफ़ी वक्त मिलता है आप दोनों को मिलने को, बट यू शो इच अदर केयर ओनली थ्रू वर्क. और ऊपर ऊपर से जस्ट ऑन द सरफेस लेवल यू गाइज टॉक कि उनके ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी परेशानी आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बताते हैं, आप लोग डिस्कस करते हो. एंड यू बीइंग देयर शोल्डर कि आई अंडरस्टैंड, आई फील यू. ऐसा आप लोगों के बीच एक एम्पैथेटिक कन्वर्सेशन होते हैं. एंड यू गाइज हैव दिस स्ट्रिंग बिटवीन यू, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आपको वो पर्सन अपने ज़िंदगी इंसाइट्स दे रहे हैं, इसलिए आपको समझ में ये भी आ रहा है कि जो आप लोग के बीच एक स्ट्रिंग डेवलप हो रही है वो एक्सप्रेसिवली डेवलप करना मुश्किल है. काफ़ी सिचुएशन काफ़ी अनफेवरेबल है ये सब बातें अभी शेयर करना या खुल के डिस्कस करना. यू गाइज आर, आई फील काफ़ी मैच्योर हो. मे बी वन ऑफ यू इज़ ऑलरेडी मैरिड और वन ऑफ यू ऑलरेडी हैविंग किड्स विथ दम, बट आई थिंक दे आर नाउ सिंगल पेरेंट. मे बी समथिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. या तो फिर उस इंसान की ज़िंदगी में अभी पेरेंट्स की काफ़ी जिम्मेदारियां हैं जो उनको निभाने हैं. एंड दे आर काइंड ऑफ feeling stuck, they are kind of feeling exhausted about their life, and maybe that's why they give you a little bit of glimpse. They have a lot of obstacle in their life and that's why they discuss with you. आप उनके लिए या वो आपके लिए एक सहारा हो, अ फ्रेंड इन नीड जैसी एक सिचुएशन है. एंड जो भी आपके साथ आपके मन में जो भी ये डेवलप हो रहा है कि उनके बारे में आप कंटिन्यूस सोचे जा रहे हो, इट इज़ मे बी ड्यू टू यू आर फीलिंग देयर पेन सो पर्सनली. आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उस पर्सन का पेन. यू वांट टू चेंज दिस पर्सनस लाइफ फॉर अ बेटर. आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं उस इंसान का लाइफ को थोड़ा आसान कर दूँ. यू फील अ बिट bad about that person. You kind of keep yourself in that person's shoe and you feel their pain. और जिसके वजह से आप लोग के बीच जो कनेक्शन है वो सिर्फ ऊपर ही सरफेस लेवल बातों से ही बस रह जा रहे हैं. या वट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड यू आर अनेबल टू स्पीक अप, बिकॉज ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया है कि जहाँ पे ये सब बातें करना सही रहेगा. या तो फिर अभी सिचुएशन इतना भी ऐसा पॉसिबल, इतना नॉर्मल नहीं है कि ऐसे बातें को अभी इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि अभी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रहे हैं जिसको ज़्यादा गहराई से देखा जा रहा है. एंड कीपिंग द फीलिंग्स, कीपिंग द रोमांटिक साइड असाइड इज़ द मेन सॉल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन एट दिस मोमेंट. सो ऐसा क्या चल रहा है, या तो फिर लेट मी deep dive into the situation even more. Let me shuffle some more cards. क्या situation है इस connection का? Why this person having such troubles in their life? What is the actual situation? Give me some glimpse. Nine of Pentacles and one more card. Page of Wands. They are preparing for something. They are analyzing things. They have a huge dreams. Okay, they have huge dreams and they are analyzing things. They are preparing themselves. उनके पास अभी जो भी है as a resource, वो उनको अभी उन पर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. उनके पास जो भी पास एक्सपीरियंस है, जो भी अभी तक उनके ज़िंदगी में हुए हैं, वो उस सबको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आई हैव गेन्ड दिस मच ऑफ नॉलेज, आई हैव गेन्ड दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस. और वो लाइफ को किस तरह से बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, उनके लिए वो काफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड आई एम गेटिंग दिस वाइब कि ये पर्सन को चीज़ें एज नेचुरल एज पॉसिबल बहुत पसंद है. दैट पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड दैट पर्सन इज़ उनके पास खेत बहुत सारे होंगे शायद. दिस पर्सन लव्स टू कल्टिवेट और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी कल्टिवेशन को
अच्छा करने के लिए काफ़ी केयर कर रहे हैं. एंड that person, around that person animals and a child feel safe. I feel काफ़ी एक गुड सोल है ये पर्सन. ओके. एंड दे आर जेन्युइनली वेरी नाइस पीपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट. एंड उनकी ये सब तकलीफ़ें आपसे शायद नहीं देखा जा रहा है. यू फील लाइक कि दिस पर्सन डजंट डिजर्व ऑल दिस critical situations in their life. You want this person's life to be fulfilled as they want. आपको लगता है ये पर्सन को एक बहुत अच्छा ज़िंदगी की ज़रूरत है. दिस पर्सन डिज़र्व्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. और इसीलिए शायद आपको लगता रहता है काश मैं कुछ हेल्प कर पाता, थोड़ा सा इनको मैं सजेशन दे पाता जहाँ पे वो अपना लाइफ को सही कर पाए. एंड आई थिंक दैट पर्सन इज़ collecting a lot of resources by themselves as well. कि अभी बहुत कुछ किए हैं उन्होंने और बहुत कुछ करना बाकी है उनको. जो भी है उनके पास that doesn't seem enough. ऑलराइट. उनको और कुछ मेहनत करनी है और कुछ बढ़ानी है. जो अभी तक है वो काफ़ी नहीं है. आई थिंक दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू गैदर देयर जनरेशनल वेल्थ. उनको ऐसा है कि मैं एक ही जनरेशन पे 2-3 जनरेशन थोड़ा अगर आगे करके जा सकूँ चीज़ें काफ़ी अच्छा होगा. आई जेन्युइनली फील कि इस पर्सन के जो पेरेंट्स थे या दादा परदादा थे वो लोग एक लेवल तक उनको एक अच्छा लाइफ दिए हैं. बट दिस पर्सन फील्स कि मैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ और ज़्यादा करके जाना चाहता हूँ. इसलिए अभी तक मेरे पास जितना है रिसोर्सेज दैट आर नॉट इनफ. आई नीड टू क्रिएट रिसोर्स. आई नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ टाइम. और एक ही लाइफ टाइम में 2-3 जनरेशन अपग्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है. क्योंकि आपके पास जितना रिसोर्स है, जितना एबंडेंस है वो काफ़ी नहीं होता है लाइफ को 2-3 जनरेशन अपग्रेड करने के लिए. एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वर्किंग सो हार्ड फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन. उनको अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा ज़िंदगी मिला है अपने माँ बाप से. बट एट द सेम टाइम दे फील कि कई चीज़ों में काफ़ी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा था. कि कुछ चाहिए लेकिन ले नहीं सकते, कुछ पसंद आया था लेकिन नहीं मांग सकते. सो उस तक की काफ़ी सेक्रीफाइस करके ये इंसान बड़ा हुआ है मुझे लग रहा है. दे हैड अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ड्रीम्स जो रिमेन्ड अनफुलफिल्ड. अभी उनको ऐसा है कि जिस टाइप का सेक्रीफाइसेस मैंने देखा है वो ब्लेम नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने कुछ नहीं दिया. उन्होंने बहुत कुछ दिया जिसकी वजह से आज वो इतना एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं. उनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए हैं उन्होंने. उनको चीज़ें एनालाइज करने का बहुत अच्छा उनके पास हुनर है. दैट पर्सन इज़ फिलोसॉफिकली इमोशनली काफ़ी एडवांस्ड है. तो वो चाहते हैं कि उन्होंने जो गेन किए हैं अभी तक वो गेन्स को वो एक जनरेशनल वेल्थ में उनको डेवलप करने का बहुत ज़्यादा इच्छा है ताकि उनकी आने वाले पीढ़ी की ज़िंदगी काफ़ी अपग्रेडेड हो. एंड दैट्स वाई दैट पर्सन इज़ इन्वेस्टेड इन देयर वर्क, इन देयर कल्टिवेशन वेरी मच. एंड दैट्स वाई दे आर not trying to get involved emotionally with anyone. That person I feel that person already feels something. कि हो सकता है आप उनके लिए जो फील करते हो मे बी दैट पर्सन ऑलरेडी हैव अ सेंस. या तो फिर वो पर्सन भी इक्वली आपके लिए कुछ ऐसा ही फील करते हैं. बट दे आर इन ए डिनायल कि अभी ये सब में मुझे अभी नहीं पढ़ना है. लेट मी फोकस ऑन माई वर्क फर्स्ट बिकॉज लाइफ काफ़ी कम है. बहुत कम वक्त में हम बूढ़ा हो जाएंगे और हमारे पास वक्त नहीं रह जाएगा. दैट्स वाई दैट पर्सन सिम्स अ बिट डिटैच्ड, नॉट कम्प्लीटली डिटैच्ड बट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम दिस इमोशनल बैरियर. और उनको पता होते हुए भी वो आपके साथ एज ए वेल विशर, एज ए गुड फ्रेंड ही वो रह जाना पसंद करते हैं. एंड लेट मी शफल द फाइनल कार्ड कि व्हाई दिस पर्सन इज constantly in your mind. Why this person is constantly in your mind? The High Priestess. You are learning a lot from this person.
आपके लिए पर्सन एक बहुत नॉलेजेबल, बहुत विजडम पर्सन है, जो बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं आपके साथ ज़िंदगी के बारे में, फ़िलोसॉफी के बारे में, एंड यू फील लाइक यू नेवर मेट सच पर्सन बिफोर, और that's why this person is making an impact in your mind. This person's energy is very grounded, a very calm energy, very cool energy, and you feel like you are reading a book, you are reading a book of higher knowledge, of higher thoughts, and that's why you explore a complete different world in this person. जो दुनिया, बाहरी जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, वहाँ से काफ़ी हट के इस इंसान के अंदर आप कुछ फील करते हो. दिस पर्सन इटसेल्फ इन अ न्यू वर्ल्ड, ये एक अपने आप में कंप्लीट एक इकोसिस्टम जैसा आपको फील होता है. यहाँ पे इस पर्सन के साथ आप बात करते हो तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे कैसे बात करते हैं आपको वो भी समझने आने लगे हैं. दिस पर्सन लेट्स यू फील द लव अराउंड यू. प्यार ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक इंसान से ही मिले. दैट पर्सन गिव्स यू एग्जाम्पल ऑफ लव फ्रॉम अराउंड द होल्ड यूनिवर्स अराउंड अस, कि एक एनिमल से भी हमको कैसे प्यार मिल सकता है, एक पेड़ पौधे भी हमको कैसे प्यार कर सकता है. दिस पर्सन इज आई फील दैट दिस पर्सन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मेडिटेशन. दैट्स वाई दे आर कनेक्टिंग विद देयर हायर सेल्फ. काफ़ी न्यूट्रलिटी फॉलो करते हैं, काफ़ी न्यूट्रल है वो अपनी ज़िंदगी को लेके. दिस पर्सन हैव नो डिज़ायर टू मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना वेल्थ चाहिए, ऐसी टाइप की नहीं है. लेकिन हाँ, उनको बना के जाना है, उनको वेल्थ बना के जाना है. एंड दैट्स वाई दिस पर्सन कैन वर्क इवन विदाउट ईटिंग, विदाउट स्लीपिंग. उनको कोई चीज़ों का शौक नहीं रह गया. दे जस्ट वांट टू सिंपली वर्क, ताकि आने वाले जनरेशंस को तकलीफ़ें ना हो. बिकॉज दे हैव फेल्ट दिस डिफ़िकल्टीज, बिकॉज दे हैव नोन कि ज़िंदगी में चीज़ें, शौक़ पूरा होना कि कैसा लगता है, पूरा जब नहीं हो पाता है तो अब कैसा लगता है. दैट्स व्हाई दैट पर्सन हैव कम्प्लीटली न्यूट्रल अबाउट देयर लाइफ विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस. लेकिन एट द सेम टाइम दैट पर्सन, उनको समझ में आता है कि मैं अपने वजह से मैंने खुद डेवलप किया है न्यूट्रलिटी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर वो इंसान न्यूट्रलिटी ही डेवलप कर लेगा जिनको शौक़ पूरी नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई दिस पर्सन वांट्स टू कीप अबंडेंस टू देयर आने वाले जनरेशन के लिए. बट दैट पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड टू मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि दिस पर्सन इज समवट वेरी मच डिफरेंट. दैट पर्सन कैरीज अ लॉट ऑफ डिफरेंट फिलोसॉफी फॉर देमसेल्फ, जो आपको कभी ये सब का मौका ही नहीं मिला था. ऐसे लोगों से आप कभी मिले ही नहीं थे. दिस पर्सन फील्स लाइक ए ओल्ड सोल टू यू. ऑल राइट, कि इनके साथ बैठूँ तो एक महा किताब पढ़ रहा हूँ जैसा आपको फीलिंग आती है. एक बहुत ज्ञानी, एक किसी का लिखा हुआ एक आप किताब पढ़ रहे हो जैसा आपको फीलिंग आती है. दैट्स वाई दिस पर्सन स्लोली पेनेट्रेटिंग इन योर हार्ट, कि अब ना चाहते हुए भी वो अपने आप आपके मन में आ जाता है. बिकॉज दैट पर्सन वाइब्रेट्स ऑन अपर लेवल, और उस वाइब्रेशन के लोगों के साथ आप कभी मिले ही नहीं थे. एंड लेट मी टेल यू, दिस पर्सन एक्चुअली, दिस टाइप ऑफ पर्सनस आर वेरी रेयर हु वाइब्रेट्स ऑन अपर लेवल देन अस. और जब हम किसी से मिलते हैं जो हमसे एनर्जेटिकली काफ़ी ऊपर लेवल में वाइब्रेट करते हैं, तो हम उस इंसान से ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं. एंड यू आर समवेयर ऑल्सो डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, योर माइंड, योर इनर सेल्फ विद दिस पर्सन. एंड आपको लगता है ये आपका पथ दर्शक है. आप इनके साथ बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने को आपको मिल रहा है. एंड दैट्स वाई यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, एंड समहाउ यू आर स्कैर्ड टू लूज दिस पर्सन. बट दिस पर्सन इज नॉट गोना स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ, because that person have already understood what is neutrality. That person is already attracted to neutrality. उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ों की उनको कमी भी नहीं है. At the same time they likes you but they knows that everything is temporary. वो काफ़ी हद तक अपने इमोशंस से वो डिटैच हो चुके हैं. That's why I told you कि वो अपने आप को
पहले से ही, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो अपने इमोशन से काफ़ी दूर हो चुके हैं, दूर हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव फाउंड पर्पज़ ऑफ देयर लाइफ, कि जब मैं इस दुनिया में आया हूँ कुछ कर्म करने ही आया हूँ, एंड नाउ आई नो माई कर्म, मुझे क्या करना है मुझे पता है, एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, राइट, and that's why they are kind of moving away from everyone slowly. I think जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, but for some of you I feel like this person is hiding some difficulties of their life or about their health, कि उनको कुछ कुछ इशू है उनके हेल्थ में, आई फील, और वो आपको बता नहीं रहे, वो या तो फिर आपको बता भी रहे, एंड मे बी यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस पर्सन's हेल्थ, एंड दैट्स वाई यू ऑल्सो नो कि दिस पर्सन इज अ टेम्पररी पर्सन इन योर लाइफ, बट गना लिव इम्पैक्ट फॉर एवर. इस टाइप का एक कनेक्शन मुझे महसूस हो रही है, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी फील वेरी डीपली अबाउट दिस पर्सन, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड वैल्यूज रेस्पेक्ट्स योर इमोशन, एंड ऑल्सो मे बी मुझे ऐसा लगता है वो खुद आपको इस चीज़ का आपको बोलेंगे कि आई फील व्हाट यू फील अबाउट मी. पर यह भी जानना ज़रूरी है कि दुनिया का सच क्या है. तो सच हमेशा हम जो नहीं चाहते हैं वही होता है सच, एंड यू नीड टू ग्रो विद दोज बिटर ट्रूथ्स. वो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे कि ज़िंदगी को आसान तरह से लो. ज़िंदगी जब आसान है नहीं, उसको कॉम्प्लिकेट हम खुद कर लेंगे तो और तकलीफ़ें आएंगे. सो इट्स बेटर टू टेक लाइफ एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, and that's why you are losing interest from everything else around you, and you are slowly unknowingly uh, inclining towards this person. Okay, this person vibrates in a different level. This person, they had shown you a different world within themselves, and you feel like you are now on a different dimension with this person. So that's why this person is constantly in your mind. So do let me know, did this resonate with you, and only claim this energy if this resonates with you. And also I do personal readings. If you need any concern or you want to contact me, you can go to my description box. There I have given my email ID and also my Instagram ID. You can contact me there as well. So see you in my next video. Thank you once again for coming into my channel. See you again. Take care. Bye bye.